The moon, Earth's only natural satellite, has captivated human imagination and curiosity for millennia. It is an awe-inspiring celestial object that has played a significant role in shaping human culture, scientific exploration, and even our planet's natural cycles. The moon orbits around Earth at an average distance of approximately 238,855 miles, 384,400 kilometers, and takes approximately 27.3 days to complete one full orbit, which is known as a lunar month. Interestingly, its rotation period matches its orbital period, causing the same side of the moon to always face the Earth. This phenomenon is called synchronous rotation. When we observe the moon from Earth, we notice distinct phases due to the changing position of the moon relative to the sun. These phases, such as the new moon, crescent moon, first quarter, gibbous moon, and full moon, have been an integral part of various cultures, mythologies, and calendars throughout history. The moon's surface is covered in a vast array of geographical features. Dark, flat areas known as Maria, singular Mare, are ancient volcanic plains created by lava flows billions of years ago. The lighter areas, called terrae or highlands, consist of mountains and rugged terrain, and they are heavily cratered due to impacts from asteroids and meteoroids. One of the most prominent and easily recognizable features on the moon is the giant impact crater called the Copernicus crater. The crater is about 58 miles, 93 kilometers in diameter, and serves as a reminder of the moon's tumultuous history of asteroid and meteoroid impacts. The moon's gravitational pull significantly influences Earth's tides, a phenomenon that occurs due to the interaction between the Earth, moon, and the sun. As the moon orbits the Earth, it causes the ocean's water to bulge, creating high and low tides in coastal regions. These tidal forces also cause a slight elongation in the Earth's shape, leading to the moon's gravitational pull gradually slowing down the Earth's rotation over the centuries. The moon has been the subject of numerous space missions, with the most notable being the Apollo missions led by NASA. Apollo 11, launched on July 16, 1969, successfully landed astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin on the moon's surface on July 20, 1969. Neil Armstrong's famous words, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind," echoed around the world as he stepped onto the moon, marking a pivotal moment in human history. Despite its close proximity to Earth, the moon continues to offer great potential for scientific exploration and research. It has acted as a valuable platform for astronomical observations and testing new technologies for future space missions. Moreover, the moon's surface and subsurface hold vital clues about the early history of our solar system and could potentially provide resources that would aid future long-term space exploration missions. As we look to the future, the moon remains a focal point for space agencies and private companies aiming to establish a human presence on its surface. These efforts could lead to the development of lunar bases, resource mining, and serve as a stepping stone for further human exploration of deeper space, including Mars and beyond. In conclusion, the moon's mystique and beauty continue to inspire humanity. It holds not only scientific importance, but also cultural significance as it is intertwined with countless myths, legends, and beliefs from diverse cultures across the globe. Whether gazing up at its brilliance in the night sky or contemplating its potential for exploration, the moon will forever hold a special place in human history and our aspirations for the future. तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले चैट जीपीटी में आके हमने अपना जो स्टोरी लिखनी है या जो इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम वीडियो बनाना चाहते हैं वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट तो यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट अबाउट मून। ठीक है, तो मैं चांद के बारे में कुछ चाह रहा हूँ कि मुझे चैट जीपीटी लिख के दे दे कि चांद क्या है और उसके बारे में बता दे। तो मैंने ये एक प्रॉम्प्ट लिख लिया और उसकी जो जितना भी टेक्स्ट आया है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ठीक है ना।
चलिए इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अब जो मतलूबा हमारी वेबसाइट है जिस पर जाके हमने ये सारी टेक्स्ट से वीडियो बनानी है, उसमें हम लोग जो है अपना साइन अप कर लेंगे। तो इस वेबसाइट का नाम है ऑगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है, आप वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे अपने ईमेल एड्रेस के ज़रिए से, ठीक है। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ। आप भी अपने ईमेल के ज़रिए से इसको साइन अप कर लीजिएगा। पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से दे दें जो देना है, ठीक है। एक दफ़ा साइन अप करना ज़रूरी है क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो तभी आप उसमें इसके जो वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। ये शायद कोई एरर दे रहा है, मेरा नेट भी थोड़ा सा स्लो है। चलें, ये अब उम्मीद है खुल जाएगा। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पर जाएंगे, ये देखें वेलकम टू ऑगी, क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पर वो कहता है हमने क्या करना, स्टार्ट यूर वीडियो। तो हमने जो ट्रांसक्रिप्ट चैट जीपीटी में लिखा था वो सारा का सारा यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ से हम लोग वॉइस ओवर की आवाज़ सेलेक्ट कर लेंगे जो करनी है। तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें सुनीता, ये इंडिया की फ़ीमेल की आवाज़ है तो ये बेहतर रहेगी। तो ये अभी इसमें प्ले करके भी दिखाएगा। आपको आवाज़ नहीं आ रही होनी तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। तो हमारी जो वीडियो है यानी कि टेक्स्ट से वीडियो जो हमने उससे डिमांड की है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, इसमें थोड़ी सी देर लग सकती है, ठीक है। तो कुछ ही देर में अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेगी। यहाँ पर हम आके एक मज़ीद इसमें लिखेंगे कि हम किसके बारे में मज़ीद उसको दे रहे हैं अंदाज़ा कि किसके बारे में हम चाह रहे हैं कि वीडियो बने, और स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ी सी देर लगाएगा। कुछ ही देर ये प्रोसेस करने के बाद इस तरह से आपके सामने वीडियो जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इससे मज़ीद आगे बढ़ने का कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ देर लगेगी, वो डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितने मिनट की है। देखें उसने इमेजेस लेने हैं, सारा कुछ स्क्रिप्ट तैयार करना है, सब टाइटल लगाने हैं। तो यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, इमरान खान वाला, यानी कि आपने घबराना नहीं है और बिल्कुल नहीं घबराना। तो आप नहीं घबराएंगे तो वीडियो आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो जब तक ये होता है तो मैं आपको साइड बार में जो एडिटिंग टूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि ये जो एक वीडियो बना देगा, स्क्रिप्ट जो हमने दिया था, इसमें कुछ तस्वीरें ऐसी होंगी जो उससे रिलेटेड नहीं होंगी। तो हम अपनी मर्ज़ी से भी तस्वीरें लगा सकते हैं, ठीक है ना। अपने कंप्यूटर या हमारे पास मोबाइल में जो सेव हैं या सेव कर सकते हैं, या हम मज़ीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से वीडियो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई मसला नहीं है कि जो AI टूल्स या AI वेबसाइट ने जो हमें बना के दे दिए तो वो वैसी रहेगी, हम उसमें से अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये, या हम सोच रहे हैं कि ये तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तो हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो तस्वीरें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, ठीक है जी। डाउनलोड करके भी, या हमारे जो अपने मेमोरी में पड़ी होंगी मोबाइल या लैपटॉप की, उस वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो ये देखें, मैं तस्वीर एक को चेंज करता हूँ, ये यहाँ से ये वाली मैं चेंज कर देता हूँ। तो देखें ये मेरी जो वीडियो बन रही है उसमें भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि यहाँ से अब तस्वीरें, वीडियो जो भी है, एक पार्ट जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर भी मैं ये तस्वीर मुझे लग रहा था कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। नीचे स्क्रिप्ट पढ़ लें कि क्या है। वो कहता है ना अनएबल टू लोड दिस इमेज, वो अनएबल, वो कह रहा है कि अनएबल। मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से ये वाली तस्वीर लगा देता हूँ, ये वाली, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखें अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये नेक्स्ट वाली तस्वीर भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से मून लिख के यहाँ सर्च करता हूँ। आप सर्च कर सकते हैं, देखिए बिंग से भी सर्च कर सकते हैं, स्टॉक क्लिप्स भी ले सकते हैं, स्टॉक फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, सो ऑन आप यहाँ से भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। तो यहाँ मैंने मून लिखकर सर्च किया। मैं चाह रहा हूँ ये जो पिक दी हुई है इसको भी मैं चेंज कर दूँ, तो यहाँ अभी आ जाएंगी। थोड़ा सा देर लग रही है क्योंकि उधर से हमारी वीडियो जो है वो प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ से कोई भी जो इमेज है मैं वो यहाँ पर इसको एक्सचेंज कर देता हूँ, यानी कि इसके साथ चेंज कर देता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, तो इस तरह आप की जो वीडियो है उसमें जो इमेजेस आप चेंज करना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं एडिटिंग टूल्स की तरफ। तो माई लाइब्रेरी में चलते हैं। ये थोड़ा सा देर लगा रहा है। माई लाइब्रेरी में आपकी जो चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड करके रखी होंगी वो आ जाएंगी, और जनरेट में स्टाइल आ जाएगा कि किस स्टाइल में आप लोगों ने इस स्टोरी या इस इंफॉर्मेशन को करना है। अब ट्रांसक्रिप्ट आ गया, देखें हर इमेज के सामने नीचे उसका ट्रांसक्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो आप ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो टेक्स्ट है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कुछ 6 सेकंड की वीडियो है, कोई 7 सेकंड की है, तो आप उस वीडियो के दौरान जो ट्रांसक्रिप्ट आ रहा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई लफ्ज़ और डालना चाहते हैं, कोई बात को चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ हो जाएगा, और बाद में उसी के मुताबिक जो वॉइस ओवर है वो भी चेंज हो जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट पे। अब आप यहाँ पर ये देखें एंटायर वीडियो क्लोज कैप्शन, हम कैप्शन लगा देते हैं। ठीक है, सब टाइटल्स जो होते हैं। तो यहाँ पर उस टेक्स्ट का एडिटिंग का सारा दिया गया है कि हम लोग जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा आना चाहिए, टेक्स्ट का कलर कैसा आना चाहिए। अब ये देखें मैंने यहाँ इससे बैकग्राउंड कलर जो वाइट कर दिया, तो टेक्स्ट भी वाइट है तो दोनों वाइट हो गए, इस वजह से नज़र नहीं आ रहे। तो अब मैं यहाँ से जो टेक्स्ट का कलर है, मैं फ़र्ज़ कर लें अब यहाँ से रेड कर देता हूँ, तो ये देखें इस तरह टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह फिर मैं बैकग्राउंड कलर जो है मैं कर देता हूँ, यहाँ से ब्लैक कर देते हैं, और उसके टेक्स्ट का कलर जो है दोबारा से हम लोग वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो, अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स इसमें पड़े हैं, वो हम अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट्स भी इसमें चेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड यानी कि अंडरलाइन करना है या स्टैंडर्ड, वो भी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा सब टाइटल है उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, उसे दरमियान में रखना है, नीचे रखना है या ऊपर रखना है, वो भी हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं एडिटिंग टूल के अगले टूल में, यानी कि म्यूज़िक में। यहाँ से आप म्यूज़िक उठा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी YouTube की जो लाइब्रेरी है ना, ऑडियो लाइब्रेरी, वहाँ से म्यूज़िक लें ताकि ये ना हो कि आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगले पे चलते हैं फ़िल्टर्स पे। अभी ये फ़िल्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप अपनी जो वीडियो है जो आपकी बन रही है, आप उसके जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं आप, उनका टाइम चेंज कर सकते हैं, उनकी किस्म चेंज कर सकते हैं कि किस तरह की ट्रांजिशन आप लगाना चाह रहे हैं आप अपनी वीडियो के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो एक ही ट्रांजिशन आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं, और मज़ीद जो है प्लेसमेंट है इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो आप प्ले करके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि आपकी वीडियो कैसे बनी है। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, जो वॉइस ओवर बैक पे मैंने लगाया था सुनीता का, तो वो नहीं आ रहा होगा। तो जब वीडियो ये बन जाएगी तो मैं आपको सुनवाता हूँ ये। तो इसको स्टॉप करते हैं। उससे अगला जो काम है वो है एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड वीडियो पे आप क्लिक करते हैं तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी सी देर लगाएगा, और उसके बाद इसकी परसेंटेज वहाँ पर शो हो जाएगी कि आपकी वीडियो जो है वो कितने % जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। वो आपके मोबाइल से है तो मोबाइल की गैलरी में आ जाएगी, और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में कर रहे हैं तो उसकी डाउनलोड्स में चले जाएगी। वहाँ से आप इसे उठा के जहाँ यूज़ करना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए आपने ये वीडियो बनाई है, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो तकरीबन डाउनलोड होने के करीब है। तो जैसे ये 100% हो जाएगी तो उसके बाद ये आपके उसमें डाउनलोड्स या गैलरी में चली जाएगी, और वहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें टिक्का
निशान आ गया। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए।